هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. على محمد وآل محمد جل فرجो। आ जाओ भाई, आप आए तो आज चल रही शर्मा तो बर हबीब खुदा खातमुल अंबिया बावाज़ बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल खुशनूदी इमाम ज़माना बुलंद तरीन सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल। اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الزعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. صل على محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد وقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وخاق تحت الكساء فدني الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتعزل لي أن نكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد وزنت لك فدخل معهما تحت الكساء
فقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن نكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن نكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن نهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم
كعبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. मजलिस का आगाज फज़ाइल आले मोहम्मद से हुआ। सोच रहे होंगे कि बुरहान ने तो यासीन की तिलावत की थी, तो कुरान तो है ही पूरी फज़ाइल आले मोहम्मद और सूरह यासीन उस कुरान का दिल, और उसके साथ ही हदीस किस्सा की तिलावत कर रहे थे रिज़ान भाई। फरशेज़ा को जनाब सकीना सलाम अलैहा के मसाहब से सजाया जाना है। या रब किस कदर तारीक ये जिंदान है, हाय या रब किस कदर तारीक ये जिंदान है, खौफ से सहमी हुई मासूम सी एक जान है। न उजाले की किरण है न हवाओं का गुजर है, सन्नाटा मौत का हर सू कफस वीरान है। जिसकी खातिर कर दिए बाजुए, जिसकी खातिर कर दिए बाजू फिदा अब्बास ने, घोर अंधेरे में बिलखती आयत कुरान है। गुजारिश करूंगा अब्बास अली से कि बारगाह मासूमीन में हदिया पुरसा पेश करें। बराए खुशनूदी मौला मुश्किल कुशा बुलंद तरीन सलवात।
बेटी अली की तुर्बत ज़हरा पे आई है, बेटी अली की तुर्बत ज़हरा पे आई है। कुर्ता लहू भरा हुआ भाई का लाई है, कुर्ता लहू भरा हुआ भाई का लाई है। कहती है ऐ हुसैन की अम्मा उठो उठो, कहती है ऐ हुसैन की अम्मा उठो उठो, ज़ैनब से करबला का ज़रा माजरा सुनो, ज़ैनब से करबला का ज़रा माजरा सुनो। अम्मा हमारे रंजो मसाइब है दर्दनाक, अम्मा हमारे कल्बो जिगर हो चुके हैं चाक, अम्मा हमारे नाना की उम्मत ने की दगा, अम्मा हमारे खून को समझे है सब रवा। कहती है हुसैन की अम्मा उठो उठो, कहती है हुसैन की अम्मा उठो उठो, ज़ैनब से करबला का ज़रा माजरा सुनो, ज़ैनब से करबला का ज़रा माजरा सुनो। अम्मा तरस के रह गए पानी को हम तमाम, अम्मा दिया न हमको किसी ने भी एक जाम, अम्मा हमारे मर्द तहे तेग हो गए, अम्मा नहा के खून में बेचारे सो गए। कहती है हुसैन की अम्मा उठो उठो, कहती है हुसैन की अम्मा उठो उठो, ज़ैनब से करबला का ज़रा माजरा सुनो, ज़ैनब से करबला का ज़रा माजरा सुनो। अम्मा परे है नहर पे अब्बास रूठ कर, अम्मा सकीना सोती है जिंदा में बेपदर, अम्मा कहाँ से अकबर महरूं को लाऊं मैं, अम्मा कहाँ पे असगर नादा को पाऊं मैं। कहती है हुसैन की अम्मा उठो उठो, कहती है हुसैन की अम्मा उठो उठो, ज़ैनब से करबला का ज़रा माजरा सुनो, ज़ैनब से करबला का ज़रा माजरा सुनो। अम्मा ओ मेरे आनो मोहम्मद मेरे पे सर, मैदाने करबला में परे है कटा के सर, अम्मा लहू में डूब के कासिम भी चल बसे, अम्मा हसन को मुँह न दिखाने के हम रहे। कहती है हुसैन की अम्मा उठो उठो, कहती है हुसैन की
जरा सुनो। अम्मा हुसैन करबो बलाही में रह गए, अम्मा हुसैन सारे मसाइब को सह गए। अम्मा हुसैन मर गए बेयारो बेवतन, अम्मा हुसैन को न मयस्सर हुआ कफन। कहती है हुसैन की अम्मा उठो उठो, कहती है हुसैन की अम्मा उठो उठो। ज़ैनब से करबला का ज़रा माजरा सुनो, ज़ैनब से करबला का ज़रा माजरा सुनो। अम्मा हमारी चादर भी छिन गई तमाम, अम्मा हमारे हाल पे हंसते थे अहले शाम। अम्मा वो शाम गुर्बत शब्बीर आए आए, अम्मा वो रात काली वो सुनसान कत्लगाह। कहती है हुसैन की अम्मा उठो उठो, कहती है हुसैन की अम्मा उठो उठो। ज़ैनब से करबला का ज़रा माजरा सुनो, ज़ैनब से करबला का ज़रा माजरा सुनो। अम्मा ये हाल आबिद बीमार हो गया, जालिम सिपाह ने ले लिया बिस्तर गरीब का। अम्मा कदम कदम पे असीरी रुला गई, गर्दन में तोक पाँव में जंजीर आ गई। कहती है हुसैन की अम्मा उठो उठो, कहती है हुसैन की अम्मा उठो उठो। ज़ैनब से करबला का ज़रा माजरा सुनो, ज़ैनब से करबला का ज़रा माजरा सुनो। अम्मा वो बीबियों का तरफना वो शोर शैन, अम्मा रहेगी याद वो आहो बुका वो बैन। अम्मा रबाब रोती है असगर को सुबह हो शाम, अकबर को याद करती है लैला तिश्ना काम। कहती है हुसैन की अम्मा उठो उठो, कहती है हुसैन की अम्मा उठो उठो। ज़ैनब से करबला का ज़रा माजरा सुनो, ज़ैनब से करबला का ज़रा माजरा सुनो। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि जज़ाकल्लाह। अब्बास बारगाह मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में जनाब सकीना का पुरसा पेश कर रहे थे। हाय जिंदान में सकीना को क़ज़ा आई है, हाय मरने के लिए मासूमा कहाँ आई है। लेके सर बाबा का इस तरह खामोश हुई, फिर न जिंदान से रोने की सदा आई है। चल बसी खाक पे सीने पे जो सोने वाली, मर के मासूमा की हुई कैद से रिहाई है। मरसी के लिए गुजारिश करूंगा अली शहन भाई से कि बारगाह मौला हुसैन को पुरसा पेश करें। बराए खुशनूदी और मुश्किल कुछ बुलंद तरीन सलवात।
वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु एक कतार की समात करते मस्जिद का देखवा मिल के बाबा से बोले नारे सलावत। बच्चों से गुजारिश है, तमाम बच्चे इस तरफ आ जाएं, यहाँ बहुत जगह है, तमाम बच्चों से बराए खुशनूरी इमाम ज़माना बुलंद तरीन सलावत। सबसे पहले नूर से हक ने बनाए पंजता। सबसे पहले नूर से हक ने बनाए पंजता। फिर ज़मीं पर सूरते कुरान आए पंजता। फिर ज़मीं पर सूरते कुरान आए पंजता। जिस तरह तत्हीर में यकजा हुए हैं पांच हर्फ। जिस तरह तत्हीर में यकजा हुए हैं पांच हर्फ। उस तरह ज़ाते मोहम्मद में समाए पंजता। सबसे पहले नूर से सूरह फातिहा। सकीना शाम के जिंदा में थी अलाम से नेड़ा। कभी चचा का तसव्वुर, कभी पदर का ख्याल, कभी रुबाब से बातें, कभी पुपे से मका, कभी खामोश, कभी आबिदे हज़े से समा, कभी खामोश, कभी आबिदे हज़े से समा। चचा कब आएंगे दरिया से लौट कर भैया, यहाँ से नहर का है किस कदर सफर।
कदर सफर भैया मैं करबला में रही मुंतजिर नहीं नहीं ले गए मेरे गौहर नहीं जला दिए गए हम सबके घर नहीं सदाएं देती रही मैं मगर नहीं सदाएं देती रही मैं मगर नहीं हवाएं सर्द तराई में जब मिली होगी थके हुए थे बहुत नींद आ गए होगी थके हुए थे बहुत नींद आ गए होगी अरे ये जख्म ताजा जो अहले हरम के दिल पे लगा तो कैद खाने में एक हश्र हो गया तड़प के जाने बे आबिद रुबाब ने देखा अरे बस इतना कह सकी है ये क्या हुआ बेटा संभल सका ना दिल पास पास बैठ गई लगा के सीने से बच्चे की लाश बैठ गई लगा के सीने से बच्चे की लाश बैठ गई अरे तड़प के आई करीब रुबाब कहा के बच्ची को दे दीजिए मुझे खुदा की मर्जी में इंसान का क्या दखल ये रोज रोज की ईज़ाओं से भी छूट गई न दिन को तड़पेगी अब और न शब को रोएगी जिना में बाप के सीने से लग के सोएगी जिना में बाप के सीने से लग के सोएगी आखिर तड़प के बोले ये आबिद बहन खुदा मिलेंगे हश्र में खस्ता तर खुदा मेरी गरीब मेरी कम सुखन खुदा अलम रसीदा गरीबुल वतन खुदा अलम रसीदा गरीबुल वतन खुदा बहन को हुस्नो कफन तक न दे सका भाई तुझे तो इल्म है मजबूर था तेरा भाई तुझे तो इल्म है मजबूर था तेरा भाई सकीना शाम के मुल्तमिस हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन उलमा सैयद उल कासिम रज़ी साहब से कि मजलिस से खिताब फरमाएं बराए खुशनूदी मौला मुश्किल कुशा बुलंद तरीन सलवात नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी 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 बराए खुशनूदी मौला मुश्किल कुशा बुलंद तरीन सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला
मोहम्मद व आले मोहम्मद व एक जिन मरतबा फरजो सूरह फातिहा की तिलावत करके मरहूम गुलाम अब्बास मुखादम, मरहूम बहादुर अली डोडिया, मरहूमा कुलसुम बाई, मरहूमा रुखैया बाई और डोडिया ख़ानदान के तमाम मरहूमीन, हाज़रीन और सामीन के मरहूमीन जिनका कोई सूरह फातिहा पढ़ने वाला नहीं, उन सबको शामिल करने। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन ar-रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ा अल अमजद अल महमूद अल अहमद अबिल कासिम मोहम्मद आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिल हकीम व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन नार। एक बुलंद तरीन सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। छोटी सी दुआ, लेकिन इससे ज्यादा मुकम्मल और जामे कोई दुआ हो ही नहीं सकती। एक लाइन के अंदर सब जमा कर दिया गया है। और खास बात यह कि ये वो दुआ है कुनूत की कि जब हम अपने बच्चों को नमाज सिखाते हैं, माशाल्लाह एक बड़ी तादाद बच्चों की मौजूद है, जब हम अपने बच्चों को नमाज सिखाते हैं तो उस नमाज में ये दुआ कुनूत सिखाते हैं। ऐसा ही है ना? हर बच्चे को याद है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ये हमारे परवरदिगार हमको तो दुनिया में हसना दे दे, और जैसे दुनिया का हसना मांगा ना तो उसके बाद हमने फौरन आखिरत का हसना मांगा, और फिर आखिरत हसना। और हमारे परवरदिगार तो हमें आखिरत का भी हसना दे दे। ये दो सवाल बता रहे, पिछली मस्जिद से कनेक्ट करते हुए जुमला कहना चाहूंगा। ये दो सवाल बता रहे हैं कि अगर दुनिया में मोमिन को महरूम करना होता तो दुनिया का हसना ना मांगा जाता। दुनिया की नेमतें मोमिन के लिए हैं, महरूम नहीं किया जाएगा, बल्कि मोमिन का उस पर सबसे ज्यादा हक है। मासूमीन की हदीस यहां पर मौजूद है, लेकिन इसे मंजिल नहीं समझना तुम्हें। इसके पीछे अपनी आखिरत को नहीं भुला देना है। कब परवरदिगार तू मुझे दुनिया का हसना दे दे, और उसके बाद कहा कि आखिरत का हसना दे दे। अच्छा, यहीं पर एक और हदीस भी नकल करता हुआ चलूं, जहां मासूम फरमाते हैं कि अगर एक आदमी सिर्फ दुनिया के पीछे जाता है ना तो अल्लाह ताला उसे आखिरत से महरूम तो कर देता है, फिर उसे दुनिया के हवाले कर देता, दुनिया वकील हो जाती है उसकी। चौथे इमाम की दुआ में भी है कि फिर उसके बाद उसे दुनिया के हवाले कर देता है, और जब उसे दुनिया के हवाले कर देता है तो फिर उसके बाद मौला फरमाते हैं जब उसे दुनिया के हवाले कर देता है तो होता ये है कि दुनिया भी उसके हाथ से निकल जाती है, आखिरत से तो महरूम हो गया, दुनिया के हवाले कर दिया गया, और आखिर में होता अंजाम क्या है कि दुनिया भी उसे छोड़ देती है। तो इसी को कहा जाता है खसरत दुनिया वल आखिरा, यानी दुनिया का भी नुकसान हुआ उसका और आखिरत का भी नुकसान हुआ। एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ेंगे। अरे यहीं पर एक जुमला और आगे बढ़ के कहेंगे, सिर्फ दुनिया और आखिरत का नुकसान नहीं हुआ, आगे मौला फरमाते खुसरानुल मुबीन। और ये नुकसान ऐसा नहीं, कुछ नुकसान होते हैं आदमी फील नहीं करता, कंसीडर नहीं करता।
कुछ लॉस है जिसका इंसान महसूस नहीं करता। खुसरानुल मुबीन, आप इमाम मुबीन तो जानते हैं ना, किताब मुबीन तो जानते हैं ना, क्या है? कुल्ल शैइन अहसना, माशाल्लाह बच्चे ने तिलावत की, कुल्ल शैइन अहसना फी इमाम मुबीन, तमाम चीजों को ऐसा किया इमाम मुबीन ने। ला रद्दी वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन, कोई खुश्को उत्तर नहीं है मगर किताब मुबीन में। तो किताब भी मुबीन है, इमाम भी मुबीन है। मुबीन का मतलब जानते हो? मुबीन का मतलब है जाहिर। मुबीन का मतलब जानते हैं? बयान करने वाला। मुबीन हुआ बयान से, यानी बयान करने वाला, यानी किताब हक बयान करने वाली, इमाम हक बयान करने वाला। अब हमारी बात आगे बढ़ी, अब इमाम मुबीन किताब मुबीन हो गया या खुसरान मुबीन, यानी इतना बड़ा नुकसान है कि नुकसान खुद आगे बढ़ के कहता मैं नुकसान हूं तुम्हारे लिए, इस नुकसान से बचना तुम्हें। अच्छा, यहीं पर मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब मौला की दुआ भी सुनते हुए चलो। इलाही ला तकीना अला अनफुसिना तर्फता इन अबदा, वकील होना ना, मामला सिपुर्द करना। कब परवरदिगारा हमें एक लम्हे या एक मिनट के लिए नहीं कहा है, एक घंटे और एक साल के लिए नहीं कहा है। कब परवरदिगारा हमें पलक झपकने का जो टाइम है, ब्लिंक ऑफ एन आई, आंख झपकी फिर खुल गई। जितनी देर के लिए पलक झपकती है परवरदिगारा, उतनी देर के लिए भी तू मुझे नफ्स के हवाले ना कर। इतनी देर के लिए, अब पता चला कि अगर इतनी देर के लिए नफ्स के आगे हो गया, हवाले हो गया, तो इंसान डूब गया। तो जो पूरी उम्र नफ्स के हवाले हो जाएगा तो क्या होगा? खतरा बढ़ा। तो इमाम ने कहा ला तकिलना इला अनफुसिना तरफतैन नवला। अब ये तरफतैन तुमने यहां से सुना, इमाम की दुआ है जिसमें हम पढ़ते हैं और आप अक्सर मेरे साथ नमाज में पढ़ते हैं, ला तकिलना इला अनफुसिना। अच्छा, सलवात पढ़ते थोड़ा आगे आ जाए, लोग आ रहे हैं, बच्चे थोड़ा और आगे आ जाए बेटा, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। आ जाए ज़ुहैर में, अभी और आगे आ जाए, इब्न अली साहब भी आगे आ जाए, सलवात पढ़ते थोड़ा सा और करीब आ जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरज। थोड़ा सा और आगे आ जाएगा, फिर वो पीछे वालों को जगह का मसला हो जाएगा। सलवात पढ़ेंगे आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, बेटा इधर आ जाओ। तो अभी आप ये देखिएगा कि ला तकिलना इला अनफुसिना, हमें नफ्स के लिए हवाले पलक झपकने के लिए ना करना। अच्छा, पलक झपकना नहीं समझ में आया तो तुम्हें समझा दो, कुरान से एक समझा देता हूं और एक दुआए इमाम ज़माना से समझा दो। एक कुरान से समझा दो, एक दुआए इमाम ज़माना से। बस जो कुरान से समझाते हैं, सूरह नम्ल है, बहुत बड़ा नबी है। अच्छा, नबी बहुत बड़ा तो है, लेकिन साथ ही साथ ये नबी बादशाह भी है, किंग है। कौन सा नबी किंग था? हजरत सुलेमान। हजरत सुलेमान जो है ना, उनकी बादशाहत के जमाने में एक और औरत है जो हुकूमत करती है। वो औरत जो हुकूमत करती है, उस मुल्क का नाम है सबा। अब वहां जो है ना उसकी हुकूमत, वहां सूरज और चांद की पूजा होती थी। हुदूद ने एक मर्तबा कहा, हुदूद इज द नेम ऑफ द बर्ड। हुदूद ने कहा कि मैंने एक अजीब और गरीब मुल्क देखा है, एक अजीब और गरीब हुकूमत देखी है, और वहां के लोगों को हमने देखा है कि सूरज और चांद की पूजा करते हैं। अच्छा, एक चीज समझ में आई कि अजीब चीज तौहीद नहीं है, अजीब चीज गैर खुदा की इबादत है। क्या बात है, समझो ना, गैर खुदा की इबादत है। अच्छा, उसके बाद उसका बहुत बड़ा तख्त भी है। अच्छा, उसे बताया जा रहा है जिसका खुद बहुत बड़ा तख्त है। सुलेमान का तख्त कितना बड़ा था, उस तख्त के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और कुरान मजीद ने कहा ना, महीनों का सफर एक दिन में कर लेते थे। बस जो महीनों का सफर एक दिन में कर लेते थे। अब सुलेमान ने सुना कि कोई है वो तख्त मेरे लिए ला सकता है। क्या कहा सुलेमान ने?
उस हुकूमत और इख्तिदार को देखने कोई है जो मेरे लिए उस तख्त को ला सकता है? बस एक मर्तबा जो है ना, काला इफरीतुम मिनल जिन, एक जिनों में से खड़ा हो गया और उसके बाद उसने कहा कि आप अपनी जगह से खड़े नहीं होंगे, मैं तख्त को लेके आ जाऊंगा। और उसके बाद उसने एक मर्तबा कहा कि आप पलक नहीं झपकाएंगे। पब्लिक से नहीं कहा है, लश्कर से नहीं कहा है, आने वाली नस्ल से नहीं कहा है, जिसने लाने के लिए कहा उससे कहा है। कौन है? नबी है, सुलेमान नबी है। खड़ा होके कहने वाला कौन है? खड़ा होके कहने वाला वो है जो बाद में उनका जानशीन बनता है, जिसका नाम है सक्सेसर आसिफ बल्खिया। क्या कहता है? कहता है कि आप अपनी जगह से खड़े नहीं होंगे, आपकी पलक नहीं झपकेगी, मैं तख्त लेकर आऊंगा। अब जो हम कभी फजाइले मौलाए कायनात बयान करते हैं तो लोग कहते हैं तुम नबी से बढ़ा देते हो। पर तो कुरान मजीद ने एक नबी की बात की है, एक जानशीन की बात की है। वो जानशीन कि जिसके पास कुरान का थोड़ा सा इल्म था, तो वो अगर इतनी फजीलत का मालिक है जिसे पूरी किताब का इल्म दिया गया हो। कुल्ले किताब जनाब अमीर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब कह दिया कुरान मजीद के अंदर जानशीन को बढ़ा दिया गया नबी, तो क्यों नहीं लेके आ जाते? सुलेमान खुद लेके आ जाए ना। ये बताया जा रहा है कि जानशीन का ये इख्तिदार है, तो आका को क्या इख्तियार है? तो अजीजों, जब हम अली की फजीलत बयान करते हैं तो नबी का दर्जा नहीं घटाते, बल्कि ये बताते हैं कि जिस पैगंबर का जानशीन अली इतना अजीम है, तो उसका आका नबी कितना अजीम है। एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ेंगे तो कब पलक झपकने में लाऊंगा, आपकी पलक झपकने में लेके आ गए। वो वाकया पूरा नहीं बयान करना, बात पहुंच गई। लेकिन कुरान मजीद ने कहा इल्मों मिनल किताब, पूरी किताब का इल्म नहीं था। तो सुलेमान के और पैगंबर के जानशीन में फर्क क्या पता है? इसमें भी अजमत रिसालत है कि सुलेमान का जो जानशीन है उसको थोड़ा सा इल्म दे दिया गया, और जो नबी का जानशीन है उसे तमाम किताबों का इल्म दिया गया। जो नाजिल हुई उनका भी इल्म है, जो नाजिल नहीं हुई है उनका भी इल्म था। और ऐसा था कि नबी के हाथों पर कुरान की तिलावत की। बुलंद तरीन सलावत पढ़िए रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन नार से मेरा सफर शुरू हुआ। ला तकिलना इला अनफुसिना तरफता ऐन अबदा तक पहुंचा। दो हो गया तरफा, पलक का झपकना। तीसरा पलक का झपकना सुनो, तीसरा पलक का झपकना इमाम का आना है। इमाम का आना है। अगर सुलेमान के लिए तख्त आ सकता है पलक झपकने में, तो क्या खुदा को देर लगेगी आखिरी हुज्जत को भेजने में? उनके आने में जो रुकावटें, उन रुकावटों में हम खुद हैं। बल्कि एक जुमला सख्त हो जाएगा, कहता हूं और कहूंगा अजीजों, आप में से कुछ लोगों का सुना हुआ भी जुमला है। अजीजों, इमाम को पर्दा गैबत में भेजा दुश्मनों की वजह से। क्या है? 11 इमाम शहीद कर दिए ना इन्होंने। इमाम गए पर्दा गैबत में बहुक्म खुदा दुश्मनों की वजह से। आ इसलिए नहीं रहे कि दोस्त तैयार नहीं है। तो जाने का सबब वो है, ना आने का सबब हम है, ताखीर का सबब हम है। तो हम दुआ करते हैं, क्या कहते हैं? कला मेल बसर ओ वाखरा, परवरदिगारा इमाम को भेज दे, भेज दे, जल्दी भेज दे। किस तरह का भेजना चाह रहे हैं आप? किस तरह की तैयारी हमारी और आपकी? वो कूफे के भेजे हुए खत, उन्होंने भी यही तो लिखा था कि हमारा आपके अलावा कोई इमाम नहीं है। इमाम ने अपने घर से इमाम भेजा, नायब जो भेजा अपने घर से भेजा ना। अपने भाई को भेज रहा हूं, अपने सका को भेज रहा हूं, मौलिद एतबार को भेज रहा हूं, मुस्लिम इब्न अकील को भेज रहा हूं। तारीख शाहिद है आपकी।
अब हम ये दुआ कर रहे होते हैं कि महमूद भेज दे कलम हिल बसर। अगर यहीं पे तमाम हो जाता तो मामला सुलेमान वाला होता, नहीं तवज्जो है, यहीं पर हो जाता तो सुलेमान वाला हो जाता कि भाई पलक झपकने में आ गए, बस सुलेमान के तक पलक झपकने में आएगा, इमाम और हुआ अकरम उससे भी कमतर वक्त के अंदर आ जाएंगे, मगर तैयारी हमारी होनी चाहिए। बुलंद तरीन सलवात पढ़ेंगे। इस यूनिट को तो हम डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते, इस यूनिट को कोई समझ ही नहीं सकता। आगे बढ़ रहा हूं मैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, परवरदिगारा दुनिया का हसना दे दे। नमाज खत्म हुई, दुआ करने लगे। आपके घर आए थे, मजलिस खत्म हुई, आपने कहा मौलाना दुआ करा दी। ऐसे ही मेरी लंबी वाली होती है। अब वो जो दुआ करे तो 4-5 मिनट की दुआ होगी, ये भी मांगा वो भी मांगा, उसके बाद एक सबक बनाना दुआ और थी। बस सेहत है, माल है, जिंदगी है, औलाद है, रिस्क है, मोहब्बत है, लोगों में एहतराम है, इतनी सारी लंबी सी लिस्ट दुनिया में से मांग रहे थे। कुरान मजीद ने मसला आसान कर दिया कि जो 1000 तुम्हारी पूरी लंबी लिस्ट थी ना, उस 1000 को एक लाइन में कर दो। अपने लिए मांगना था, बच्चों के लिए मांगना था, भाइयों के लिए मांगना था, दोस्तों के लिए मांगना था, पड़ोसियों के लिए मांगना था, इज्जत मांगनी थी, अजमत मांगनी थी, माल मांगना था, सेहत मांगनी थी, औलाद मांगनी थी, रिस्क सब मांगना था। 1000 की लिस्ट थी। कुरान मजीद ने कहा एक लफ्ज में कह दो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, दुनिया का हसना दे दे। अब जो हसना कह दिया सब आ गया, है ना पैकेज पूरा, ये कंप्रेहेंसिव है ये। अब उसके बाद आखिरत मांग रहे थे, का सबसे बड़ा मसला मौत, मौत की सख्ती। अब क्या करें? तो आखिरत का हसना ये था कि मौत आसान हो जाए। मौत आसान हो गई, अब उसके बाद कब्र में उतारे गए, फरिश्तों का सवाल है, का सवाल आसान हो जाए। का फिर रात आ गई, पहली रात है, अंधेरा है। हम तो रोशन घर से जा रहे हैं, लेकिन जो तारीख घर से जा रहा है, कब्र उससे ज्यादा तारीख है। हम रोशन घर से जा रहे हैं, मगर कब्र इससे ज्यादा रोशन है। कब्र तारीख भी है, कब्र रोशन भी है, कब्र तंग भी है, कब्र कुशादा भी है, कब्र बेहतरीन घर भी है। कब जब तुमने अमाल पहले भेज दिए ना, तो यही कब्र कुशादा हो जाती है। अब तक हमारी समझ में नहीं आता था कि कब्र कैसे कुशादा हो जाती है, कब्र कैसे कुशादा हो जाती है। लेकिन जब अरबईन के ऊपर 2 करोड़ 3 करोड़ का मजमा जाता है, आशूरा के मौके पर 2 करोड़ का मजमा जाता है, छोटी सी करबला, उसमें सब समा जाते हैं, तो पता चला ये विलायत का इख्तिदार है। जहां विलायत से मंसूब जमीन हो जाए, वो जमीन फैल जाती है। जिस कब्र से विलायत मंसूब हो जाए, वो कब्र रोशन हो जाती है, कुशादा हो जाती है। जनाब अमीर बुलंदतर सलावत मामला उनके सुपुर्द कीजिए ना, जो वसी इख्तिदार के मालिक हो। इख्तिदार के मालिक नहीं, वसी इख्तिदार के मालिक। वसी इख्तिदार का मतलब समझते हो? बैठे जमीन पर हो, आसमानों पर इख्तिदार हो, मुर्दों पर इख्तिदार हो, ये इख्तिदार है। अल्लाह अकबर। तो बात चली, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, दुनिया का हसना दे दे। एक जुमला कहा, दुनिया का सारा रिस्क मांग लिया। और फिर आखिरत हसना, आखिरत का हसना दे दे। एक जुमला का, मौत आसान कर दे। लोगों की जिंदगी आसान कीजिए, मौत आसान होगी। हमने लोगों की जिंदगियां सख्त की हुई है, चाहते हैं कि मौत आसान हो। हमने लोगों की जिंदगियां जहन्नम बना दी, मगर चाहते हैं कि हमें जन्नत मिल जाए। हमने लोगों के लिए सुकून छोड़ दिया, सुकून लूट लिया, सुकून गारत कर दिया। परवरदिगार मुझे सुकून दे दे। सुकून दो, सुकून पाओगे। इज्जत दो, इज्जत पाओगे। लोगों की जिंदगियों को जन्नत बनाओ, तुम्हारी आखिरत में जन्नत बनेगी। बात यही है ना। और फिर आखिरत ऐसा ना, आखिरत के मालिक है मोहम्मद वाले मोहम्मद, लेकिन
सिर्फ आखिरत के नहीं, वो आपके भी मालिक हैं। क्या बात है बाबा। तवज्जो है ना, वो सिर्फ दुनिया और आखिरत के मालिक नहीं, आपके भी मालिक है। मौला के कहने से दरख्त तो अपनी जगह से हरकत करे, मौला के कहने से सूरज तो रुक जाए, मौला के कहने से चांद तो पलट जाए, टुकड़े हो जाए, मौला के कहने से तारा तो उतर जाए, मौला के कहने से मुर्दा तो जिंदा हो जाए। ये कैसा जिंदा है? मौला कहते हैं यहाँ रुक जा, रुकता नहीं, यहाँ कहते हैं बढ़ जा, बढ़ता नहीं। इताअत करो ना फिर। रब्बना आतिना फिर दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, परवरदिगारा तो हमें दुनिया का हसना दे दे, आखिरत का हसना दे दे। मौत से लेके रोजे कयामत तक का सारा हसना मांग रहे हो। और उसके बाद एक जुमला आगे क्या है? वक़िना अज़ाबन्नार, और हमें जहन्नम की अजाब से बचा लेना। ये दुआ कुनूत पढ़ने वाले क्या कुफार पढ़ेंगे? सूरह बकरा की आयत नंबर 201 है। ये दुआ कुनूत में जो पढ़ रहे हैं, ये मंदिर का घंटा बजाएगा, उसके बाद पढ़ेगा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। वो जो 7th डे चर्च होगा, वहां पर जो सर्विसेज होंगी, वहां पर पढ़ा जाएगा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। कौन पढ़ रहा है? मुसलमान पढ़ रहा है। और आगे बढ़ते हैं, कौन पढ़ रहा है? अहले ईमान पढ़ रहा है। हसना तक तो मसला नहीं था, उसके बाद वक़िना अज़ाबन्नार की क्यों जरूरत पेश आई? 2 लाइनों के बाद अगला मरहला जो था ना, 2 परवरदिगारा हमें अज़ाब जहन्नम से बचा ले। इसका मतलब है कि जहन्नम का खतरा था। इबादतों पे नाज था, चैरिटी पे फख्र था, नेकियों के 2 किताबचे छप चुके थे, अखबारात के अंदर बड़ा शोहरा था कि हमने बड़े नेक काम किए, 25 हज भी किए थे, पता नहीं कितनी नेकियां, कितने अमाल, कितनी इबादतें। उसके बाद क्यों वक़िना अज़ाबन्नार? अब मुझे नहीं पढ़ना वक़िना अज़ाबन्नार, मेरे लिए तो जन्नत कंफर्म है। का देखो मौला इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, नहीं इससे बेहतर बुलंद तर सलवात पढ़िएगा। 17 तारीख को देंगे, 29 तारीख को, फिर यानी हम तकरीबन मिडिल ऑफ दी शहादत में है ना, उधर भी शहादत इधर भी शहादत। मौला की एक हदीस सुन लो, मौला कहते हैं ला तदा, मत छोड़ो। क्या मत छोड़ो? अल इबादत, इबादत न छोड़ो, वल इज्तिहाद वला ला तदा अमल साले वल इज्तिहाद फिल इबादत। बस 2 चीजें ये जो है ना, अमल साले नेक काम मत छोड़ो और इबादत की कोशिशें मत छोड़ो। इत्तिकालन अला हुब्बे आले मोहम्मदीन, हमारी मोहब्बत के भरोसे पर इन इबादतों को न छोड़ना। समझ रहे हो? इसे कि उनकी मोहब्बत बेदीन नहीं बनाती, उनके मोहब्बत करने वालों में मालिक अख्तर जैसा नमाज शब पढ़ने वाला कारी कुरान नजर आएगा। उनकी मोहब्बत करने वालों में कौन नजर आएगा? अजीजों, जंगे सिफ़ीन है जहां अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हैं, मौला कहते हैं कि मुसल्ले बिछा दिए, नमाजों का तीर बरस रहे हैं, कैसी नमाज को कायम करने के लिए तो हम पढ़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, इसी नमाज को कायम करें। बस सिफ़ीन से करबला तक देख लो, सिफ़ीन में अब्दुल्ला कहते हैं मौला तीर बरस रहे हैं, करबला में अबू समामा सैदावी कहते हैं मौला जोहर का वक्त हो गया, फर्जंदे रसूल के पीछे नमाज पढ़ना चाहिए। नमाज ही इनके पीछे, इनको छोड़कर न दीन है, न नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात है। कबूलियत का सबब मोहम्मद व आले मोहम्मद। बुलंदतरीन सलवात
कुरान अहले बैत तक ले जाता है, अहले बैत कुरान तक ले जाते हैं। अगर जो अमल अहले बैत तक न ले जाए तो वो अमल नहीं, धोखा है। और जो मोहब्बत अहले बैत तक न ले जाए, जो मोहब्बत अहले बैत अमल साले तक न ले जाए, तो इसका मतलब दावा है लेकिन सच्चा नहीं। मौला कहते हैं इसको न छोड़ना। हदीस यहां कंप्लीट नहीं हुई। अब आइए मकाम अहले बैत। अगला मरला कवला तदा हुब्बा आले मोहम्मद। अरे अपने अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा लेके चल देता है। कवला तदा, अच्छा भाई, बहरहाल हम नमाज पढ़ने वाला सारा मजमा, नमाज का वक्त अभी बहुत दूर है। इनके पास या तो रिंगटोन है या कोई और टाइम सेट हुआ है। सलवात पढ़ेंगे बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। हो सकता है कि बहरहाल है इराक का नमाज का टाइम हो सकता है यहाँ पे इसमें सेट किया गया हो। इससे बेहतर बुलंद सलवात पढ़ें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड की मगरिब है। अच्छा, सलवात पढ़ेगा बात आई उस हदीस को मुकम्मल करने से पहले जुमला कहता हुआ चलो, आपने कहा कि न्यूजीलैंड, कुरान मजीद ने कहा वरफाना लका जिक्रक, ए नबी हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। ए नबी हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। किस तरह बुलंद किया जानते हो? किसी भी लम्हे रसूल का जिक्र रुकता नहीं, किसी भी लम्हे रसूल का और आले मोहम्मद का जिक्र रुकता नहीं। इसलिए क्योंकि जब दिन शुरू होता है तो न्यूजीलैंड से शुरू होता है। अब न्यूजीलैंड से शुरू हुआ, इधर मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अलियन हुज्जतुल्लाह। तो मुअज्जिन ने वहां अजान दी, पता चला बस सलवात में भी शामिल है ना, अजान में भी शामिल है। बस ये तो अजान का वक्त वहां हुआ था, उधर नमाज फज्र हो रही थी, इधर मुअज्जिन ने ऑस्ट्रेलिया में कहा नमाज का वक्त हुआ व रफाना लका जिक्र, फिर अजान दे दी गई। ऑस्ट्रेलिया से निकले तो एक मर्तबा और आगे बढ़े, कहां बढ़े? का सिंगापुर में नमाज का वक्त हो गया, वहां अजान सुबह दी जा रही है। सिंगापुर से निकले थाईलैंड के तरफ पहुंचे, वहां अजान सुबह का वक्त हो गया, वहां अजान दी जाने लगी। वहां से पहुंचे हांगकांग की तरफ पहुंचे, नमाज सुबह का वक्त हुआ, वहां अजान दी जाने लगी। वहां से आगे बढ़े बांग्लादेश में नमाज का वक्त हो गया, अजान दी जाने लगी। वहां से आगे बढ़े हिंदुस्तान में नमाज का वक्त हुआ, वहां अजान दी गई। वहां से आगे बढ़े पाकिस्तान में नमाज का वक्त हुआ, वहां अजान दे दी गई। वहां से आगे बढ़े यूएई पहुंचे, वहां अजान का वक्त हुआ, वहां अजान दे दी गई। यूएई से आगे बढ़े एक मर्तबा ईरान पहुंचे, नमाज का वक्त हुआ, वहां अजान दे दी गई। वहां से आगे बढ़े इराक में वक्त हो गया था, इराक में अजान दे दी गई। इराक से आगे बढ़े, इराक से आगे बढ़े तो कहां पहुंचे? सऊदी अरब पहुंचे, वहां अजान का वक्त हो गया था, वहां अजान दे दी। सऊदी अरब पर नक्शा देखते जाइएगा। सऊदी अरब से आगे बढ़े इथोपिया में नमाज का वक्त हो गया था, इथोपिया में अजान दे दी गई। इथोपिया से आगे बढ़े तो फिर सेंट्रल अफ्रीका में वक्त हुआ, वहां अजान दे दी गई। सेंट्रल अफ्रीका में वक्त हुआ था तो उसके बाद आगे बढ़े ईस्ट अफ्रीका में वक्त हुआ, वहां अजान दे दी गई। ईस्ट अफ्रीका से वक्त आगे बढ़ा तो साउथ अफ्रीका पहुंचे, वहां नमाज का वक्त हुआ, वहां अजान दे दी गई। अब यूरोप के ममालिक में वक्त हुआ, वहां अजान दी गई। वहां से आगे बढ़े अमेरिका पहुंचे, वहां अजान दे दी गई। कनाडा पहुंचे, अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में मैं टाइम को समेटते अजान दी गई। अभी यहाँ फजर की अजान दी जा रही थी, कहीं जोहर का वक्त आ गया, कहीं मगरिब का वक्त आ गया। पर यही मसला है, पहली मुहर्रम को चांद निकला, एक जगह से या हुसैन की आवाज आई, अभी पहली की शब की दूसरी जगह पहुंचे, आशूरा में भी यही, अरबईन में भी यही। बाजी दो, वहां अजाने फजाइल है, यहाँ अजाने मसाइल। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। कोई लम्हा ऐसा नहीं है जो उनके जिक्र के बगैर है। वरफाना लका जिक्र, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। अल्लाहु अकबर। और फिर इस शहर में आप जो सूरत हाल देख रहे हैं, एक मस्जिद के साथ दूसरी मस्जिद, एक वक्त में कई कई मस्जिदें हो रही हैं। ये बरकतें हैं हुसैन की, और उन बरकतों में ये बरकतें हासिल करें। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, वो बरकतें हासिल करनी है। अगली मजलिस जो रात की होगी मगरिब के साथ की, इंशाल्लाह इसमें इस हिस्से को आगे बढ़ाएंगे। हाजिर हो, हदीस को मुकम्मल कर लूं 8वें बाब की। वला तदा हुब्बा अले मोहम्मद, अहले बैत की मोहब्बत व तस्लीम ले अमरे है, दो चीजें, और उनके हुक्म के सामने सर खम करना है। मैं यूं समझता हूं, मेरा ख्याल, मेरी फिक्र,
दीवार शक हो सकती है? अजगर के दो टुकड़े हो सकते हैं? खैबर का दर उखड़ सकता है? ये जो सारे फजाइल हैं और तस्लीम ने अमरे हैं, इनके फजाइल में भी शक न करना। अल्लाह अकबर। पता चला कि तस्लीम ने अमरे, इमाम ने जहां तुम्हें हुक्म दे दिया वहां अपने सर तस्लीम को खम कर देना। इसलिए क्योंकि याद रखें, इमाम के अम्र को तस्लीम करने का मतलब रसूल के अम्र को तस्लीम करना है। रसूल के अम्र को तस्लीम करने का मतलब है खुदा के अम्र को तस्लीम करना। अल्लाह अकबर। हाँ अजीजों, अरबईन, मैं आशूरा की बात कर रहा था। अरबईन ये भी हुसैन का मजालिस, लेकिन हाँ ख्वाहिश थी सकीना के मसाइल। अजीजों, आपने अरबईन के मसाइल इससे पहले वाली मजलिस में सुने। अब सुनो, अरबईन के मौके पे जब जैनब करबला जैनब तो आ गई, उम्मे कुलसूम तो आ गई, रबाब आ गई, उम्मे फरवा तो आ गई। हाँ अजीजों, अरबईन हुसैनी के मौके पर हुसैन का एक बेटा जो करबला से जिंदा बचा था, बीमार बेटा सैयद सज्जाद तो करबला में आ गया, लेकिन अरबईन के मौके पे ये सब तो आए, लेकिन एक बेटी नहीं आई। एक बेटी नहीं आई है जो हुसैन के सीने पे सोती थी, हुसैन की अजीज तरीन बेटी सकीना। अरे जिसके लिए हुसैन खुद कहते हैं कि जब जिस घर में सकीना और अबाब हो उस घर में मेरा दिल लगता है। बस जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। हाँ अजीजों, जब जनाबे ज़ैनब ने मजलिस भी बर्पा कर ली, अब जब करबला जाने लगे ना, करबला जाने लगे तो ज़ैनब ने कहा कि हमारे काफिले को शाम के जिंदान से ले जाया जाए, शाम के जिंदान से ले जाया जाए। एक मरतबा काफिला शाम के जिंदान पर पहुंच गया। ए अजीजों, ये सकीना थी, इसी शाम में कभी बाजार में आई है, कभी दरबार में लाई गई है। हाँ, इसी शाम के जिंदान में सकीना की शहादत हुई। ए अजीजों, दो मंजर बयान कर दूं, एक दरबार का और एक जिंदान का शहादत का। अल्लाह अकबर। दरबार है, बीवियों का तारुफ हो गया, सकीना का तारुफ कराया शिवर ने। ये हुसैन की बेटी है जिसे हुसैन बहुत अजीज रखते थे। अल्लाह अकबर। यजीद ने कहा मैं इस बच्ची से बात करना चाहता हूँ। क्या देखा, एक ये बच्ची जो है 4 साल की सकीना, एक हाथ चेहरे पे है, एक हाथ गर्दन पे, एक हाथ चेहरे पे, एक हाथ गर्दन पे। भाई यजीद ने पूछा, ए बीबी, अरे तुमने चेहरे पे हाथ क्यों रखा है? कही यजीद, मैं डॉक्टर ज़हरा हूँ, जनाबे सैयदा की पोती हूँ। अरे मेरी दादी का जनाजा रात के अंधेरे में उठना है। अरे मैं कैसे खड़ी रह सकती हूँ, क्योंकि चादर छीन ली गई है, मैंने हाथों से पर्दा किया है। का गर्दन पे हाथ क्यों है? का गर्दन जो है रस्सी से जख्मी है। यजीद एक रस्सी थी, उसमें 12 गले थे, फूफियों माँ बहनों के गले। जब वो चलती थी रस्सी खिंच जाती थी, रस्सी से गर्दन जख्मी है। कभी पंजे के बल खड़ी होती हो, कभी एड़ी के बल खड़ी होती है। कहीं यजीद तू नहीं जानता? अरे कहाँ करबला, कहाँ कूफा, कहाँ शाम। अरे कभी मुझे ऊंट की पुष्प पे लटाया गया, कभी पैदल चलाया गया। यजीद, मेरे पाँव में छाले पड़ गए। अरे पंजे के बल खड़ी होगी, छाला फूट जाता है, तो मैं एड़ी के बल खड़ी होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा। एक मरतबा यजीद ने कहा, अरे अपने बाबा से मिलना चाहोगी? सकीना ने कहा क्यों कर रही? यजीद ने तख्त के ऊपर जो कपड़ा था हटाया, कहा बाप का सर है। अरे छड़ी से खेलने लगा, सकीना तड़प गई। एक मरतबा यजीद ने कहा, सुनो बाप पहुंच जाता था, अपने बाप के सर को आवाज दो। अल्लाह अकबर। सकीना ने जले में कुर्ते का दामन फैला। ए बाबा, अरे दरबार में बाप और बेटी की मोहब्बत का इम्तिहान लिया जा रहा है। ए बाबा आ जाओ, सरे हुसैन बुलंद हुआ, सकीना की आगोश में आया, सर रख दिया। बाबा तमाचे खाए, बाबा ताजियाने खाए, बाबा अरे मेरी पुष्ट जख्मी है, गर्दन जख्मी है। ए बाबा कितनी रातें गुजर गई, अरे आपका सीना नहीं मिला। बाजी दो, आओ आखिरी 2-3 जुमले ज़ैनब लेकर आ गई। कहती है सकीना बीबी, तुम सवाल करती थी ना कि वतन जाना
जाना कब नसीब होगा। ए बीबी हम वतन जा रहे, ए बीबी करबला होके जा रहे। अरे रात को बाप के सीने पे सोगी, ए बीबी आओ करबला होके। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू यन्क़लिबून अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न क़ज़ाइ व तस्लीमन लिअम्रिह। परवरदिगार तो इंशाअल्लाह मासूमीन का वास्ता, शुहदाए करबला का वास्ता, हाथों को बुलंद कर ले। शहादादी सकीना के मसाइब हुए हैं, दुआएं रद्द नहीं होंगी। परवरदिगार हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी हाजात को पूरा फरमा, बानियाने मजलिस और हाज़रीन की दुआओं को कबूल फरमा। परवरदिगार हमारे दिलों में विलायत को रासिख़ फरमा। परवरदिगार इसे हमारी नस्लों में मुंतकिल फरमा। अज़ाए इमाम हुसैन को फरोग अता फरमा। हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, मरीजों को शिफा अता फरमा, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमारा नाम उनके नासरीन में रकम फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातन हुसैन। रुखसारों पे तमाचे मासूमा खा रही है, बाबा को ज़ेरे खंजर, बाबा को ज़ेरे खंजर बेटी बचा रही है। रुखसारों पे तमाचे मासूमा खा रही है। रुखसारों पे तमाचे मासूमा खा रही है। रुखसारों पे तमाचे मासूमा खा रही है। बाबा को ज़ेरे खंजर, बाबा को ज़ेरे खंजर बेटी बचा रही है। रुखसारों पे तमाचे मासूमा खा रही है। रुखसारों पे तमाचे मासूमा खा रही है। रुखसारों पे तमाचे मासूमा खा रही है। क्यों मारते हैं बाबा, क्या आपने खता की? क्यों मारते हैं बाबा, क्या आपने खता की? आओ छुपा लूं इनसे, आओ छुपा लूं इनसे
जला रही है, रुखसारों पे तमाचे मासूमा खा रही है, रुखसारों पे तमाचे मासूमा खा रही है। आगोश में पधर के नन्हे से हाथ बांधे, आगोश में पधर के नन्हे से हाथ बांधे, जालिम ना मार ज़रबे, जालिम ना मार ज़रबे कर इल्तिजा रही है, रुखसारों पे तमाचे मासूमा खा रही है, रुखसारों पे तमाचे मासूमा खा रही है। मक़तल में है सकीना, ढूंढे कदर का सीना, मक़तल में है सकीना, ढूंढे बदर का सीना, लाशें बदर से बची, लाशें बदर से बची, पत्थर हटा रही है, रुखसारों पे तमाचे मासूमा खा रही है, रुखसारों पे तमाचे मासूमा खा रही है। नीले है गाल उसके, कानों से खून है जारी, नीले है गाल उसके, कानों से खून है जारी, हाथों से जलता दामन, हाथों से जलता दामन, आए बुझा रही है, रुखसारों पे तमाचे मासूमा खा रही है, रुखसारों पे तमाचे मासूमा खा रही है। मर कर भी कैद में है, लगता है जैसे अब भी, मर कर भी कैद में है, लगता है जैसे अब भी, जिंदा से सिसकियों की, जिंदा से सिसकियों की आवाज आ रही है, रुखसारों पे तमाचे मासूमा खा रही है, रुखसारों पे तमाचे मासूमा खा रही है। बाबा को ज़ेरे खंजर, बाबा को ज़ेरे खंजर बेटी बचा रही है, या हुसैन, 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 या हुसैन। हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है, बीमार भी, हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है, बीमार भी, पाँव में है आबले और आबलों में खार
सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी सपड़े हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी गाँव में है आबले और आबलों में खार भी हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी आँख में आंसू और जख्म जिगर में होठों पे रिदा का नोहा कर्ब बला से है शाम तलक वो कांटों पे सफर करता था रिदा सैतानिया उस पर सितम बाजार भी हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी नो के सिना पर है बाप का सर है इस बात पे ये दिल बेकाबू बेचादर है नामों से पैगंबर माहौल शराबी हर सुकून रोए सारे और सैयदे अबरार भी हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी देखने वाली आंखों ने देखा उस राह में ये भी नजर एक मुसाफिर पाबंद सफर है खुद अपनी लाश उठाकर ये माँ में वक्त है और काफिला सालार भी हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार कहता था कि ताक़े गरा आया मेरे हिस्से में वरना इस फौज में खंजर भी है तलवार भी है खून रगों का या गैरत हाशिम कहती है झुका ले सर को औक़ सलासिल क्या कैद करेंगे है सब्र के इस पैकर को सर उठाए किस तरह है राह में बाजार भी हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी देख के ज़ैनब सजाद की हालत फरियाद यही करती थी मेरा यकीन है ईमान है मेरा है शाम के बेकस कैदी रोएंगे तुझ पर सदा मसनद भी और दस्तार भी हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी बैठा कहीं पर जब थक के मुसाफिर
40 शबों का जागा, नींद जो आई बेकस कैदी को दुर्गों से जगाया जाता, देख कर रोया फलक और ज़ैनबे लाचार भी। हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी, हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार। पूछा एक शख्स ने शब्बीर तुम्हारा है कौन? कहा बाबा भी है, आका भी है, सरदार भी है, नाह गुनाह है इरफान और मजहर, तारीख को मकातिल सब ही, आल पैगंबर और शाम की गलियां, शबीर का बेटा कैदी क्यों न हो मैं बेफुका, किरतास भी अशरार भी। हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार। मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। वो आबिदे बीमार था, वो आबिदे बीमार था, चलने से जो लाचार था, चलने से जो लाचार था, और शाम का बाजार था, और शाम का बाजार था, और मुस्तफा की बेटियां मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन। शब्बीर की वो लाडली, शब्बीर की वो लाडली, सीने पे जो शाखे पली, सीने पे जो शाखे पली, वो जिसकी अबाबन में जली, जिसकी अबाबन में जली, मुंह पर तमाचों के निशान, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन। मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु तवज्जो से आरत बच्चा पढ़ाएगा। इस तरफ बेटा। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीर अल-मुअमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतु ज़हरा सय्यदति निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या गरीब अल-गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन अज़-ज़ुअफ़ा'i वल-फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्स अश-शमूस व अनीस अन-नफूस, अस्सलामु अलैका या मदफून बि-अर्ज़ तूस, السلطان العربي والأجم وأسيران كوفة والشعب ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الأسر والزمان، الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أرجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك ورحمة الله وبركاته.